ایک شریف نوجوان جسے قدم قدم پر سنگسار کیا گیا، ظالم معاشرے کی ناانصافیوں، کرپٹ پولیس اور دولت مند بدماشوں نے اسے بھی ایک غنڈہ بننے پر مجبور کر دیا۔ اور جب ایک شریف انسان جرائم پیشہ بن جائے تو وہ سب غنڈوں سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک بدقسمت نوجوان جسے جرم کی دلدل نے ایک آتش فشاں بنا دیا، بدلے کی آگ میں جلتے ایک شریف نوجوان کی کہانی۔ وہ روسی اسلحے سے بھرے ہوئے غار کے اندر کھڑے تھے۔ شارک نے آواز دے کر محمد عمر کو بھی بلا لیا۔ اسلحے کے انبار دیکھ کر محمد عمر بھی چونک گیا۔ اس نے ڈھانچہ بھی دیکھ لیا تھا۔ چند گز آگے اس غار میں ایک اور موڑ تھا، اس طرف بھی لاتعداد لکڑی کی پیٹیاں اور اسلحہ موجود تھا۔ ہیوی مشین گنیں، لائٹ مشین گنیں، لاتعداد راکٹ اور دیگر گولہ بارود بھرا ہوا تھا۔ غار کے اس حصے میں ایک اور ڈھانچہ بھی نظر آ گیا۔ وہ ڈھانچہ زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کے قریب بھی ایک کلاشنکوف پڑی ہوئی تھی۔ شارک بولا، میرا خیال ہے یہ دونوں غار کے محافظ ہوں گے، ان میں کسی بات پر جھگڑا ہوا ہوگا۔ دونوں نے فائر کھول دیا اور ایک دوسرے کی گولیوں سے ختم ہو گئے۔ یہ شخص زخمی ہو کر گھسٹتا ہوا یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا اور پھر ختم ہو گیا۔ محمد عمر نے کہا، کچھ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ لوگ کون تھے اور یہ اسلحہ یہاں کس طرح لایا گیا؟ شارک نے کہا، اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، تم باہر جا کر سمینہ اور نولکھے کو بھی بلا لاؤ، گھوڑوں کو احتیاط سے باندھ دینا۔ میرا خیال ہے عرصے سے اس طرف کوئی نہیں آیا، کسی کے آنے کا امکان بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے گھوڑوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ محمد عمر باہر چلا گیا اور شاپری اور شارک گولہ بارود کے اس انبار کا جائزہ لینے لگے۔ یہ غار چٹان کے خاصا اندر تھا، یہاں مدھم سی روشنی موجود تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، غار کی چھت بہت اونچی تھی اور اوپر ایک خلا سا نظر آ رہا تھا، اور یہ روشنی اس خلا سے آ رہی تھی۔ تمام پیٹیوں پر کوڈ نمبرز کے ساتھ USSR لکھا ہوا تھا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ یہ روسی اسلحہ تھا۔ پیٹیوں میں ہینڈ گرینیڈ، پستول، ریوالور، رائفلوں کے میگزین اور ایمونیشن بھرا ہوا تھا۔ چند پیٹیوں میں مشین گن کے بیلٹ تھے۔ اس اسلحے کی مالیت کروڑوں روپے سے کم نہیں تھی، لیکن ان کے لیے یہ بیکار تھا۔ سمینہ اور نولکھا بھی آ گئے اور وہ سب اس اسلحے کے بارے میں تبصرہ کرنے لگے۔ محمد عمر کے کہنے کے مطابق روسیوں سے جنگ کے دوران مجاہدین نے کئی مرتبہ روسی فوجی کیمپوں پر چھاپا مار کر اسلحہ ضبط کیا تھا۔ یہ اسلحہ بھی ایسا ہی تھا جو روسی فوجیوں سے چھینا گیا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان مجاہدین کے جس گروپ نے روسی فوجیوں سے یہ اسلحہ چھین کر یہاں چھپایا تھا، وہ اسے بھول کیوں گئے تھے؟ ان دونوں انسانی ڈھانچوں کی موت کا وقت تعین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ طویل عرصے سے یہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ آخر وہ کون لوگ تھے جو اتنی بڑی تعداد میں یہ اسلحہ یہاں لائے تھے اور بعد میں بھول گئے تھے؟ محمد عمر نے کہا، جنگ کے دوران بعض چھوٹے چھوٹے گروہ بھی یہاں سرگرم عمل رہے ہیں۔ انہیں مجاہدین تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان چھوٹے گروپوں نے بھی روسی فوجیوں کے خلاف محاذ کھول رکھا تھا۔ یہ لوگ موقع پا کر روسی فوجیوں سے نہ صرف ان کی خوراک بلکہ اسلحہ بھی چھین کر لے جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ایسا ہی کوئی گروہ ہو اور اسلحہ یہاں پہنچانے کے بعد وہ کسی اور کارروائی میں سب کے سب روسیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہوں، اور جن دو آدمیوں کو وہ اسلحے کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے تھے وہ بھی کسی بات پر آپس میں لڑ کر ختم ہو گئے ہوں۔ شارک نے کہا، ہاں یہی بات کچھ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ نولکھا بولا، اس اسلحے کا کیا کیا جائے؟ شارک بولا، کرنا کیا ہے؟ ہم یہ اسلحہ اپنے ساتھ تو نہیں لے جا سکتے، البتہ ہو سکتا ہے کہ ضرورت کی چند چیزیں اٹھا لیں، مثلا چند میگزین اور چند ہینڈ گرینیڈ جو کسی وقت ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ سمینہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، بولی، اور باقی یہیں پڑا رہے گا؟ شارک نے کہا، ظاہر ہے یہ اسلحہ یہاں محفوظ ہے، اگر اتفاق سے ہماری طرح کوئی اور اس طرف آ نکلا تو خود ہی سوچتا رہے گا۔ بہرحال اب باہر چلو، ہمارے لیے وہی جگہ مناسب ہے جہاں ہم نے گھوڑے باندھے ہیں۔ وہ لوگ غار سے باہر آ گئے۔ نکلنے سے پہلے انہوں نے اپنی رائفلوں کے لیے میگزین اور چند ہینڈ گرینیڈز لے لیے تھے۔ وہ اسی جگہ آ گئے جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ چاروں طرف عمودی چٹانیں تھیں، ایک طرف وہ دراڑ تھی جو غار تک چلی گئی تھی اور دوسری طرف وہ تنگ سا راستہ تھا جس کے بعد سرنگ تھی۔ اس طرح یہ جگہ ہر لحاظ سے محفوظ تھی، اور شارک سوچ رہا تھا کہ اسلحے کا ذخیرہ کرنے والوں نے اس جگہ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ یہاں اس گولہ بارود کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ لوگ رات بھر گھوڑوں پر سفر کرتے رہے تھے، کافی تھک گئے تھے، لیکن غار میں اسلحے کی موجودگی کے انکشاف نے ان کی نیند اڑا دی تھی۔ وہ دیر تک اسی پر تبصرے کرتے رہے۔ نولکھے نے کہا، مجھے حیرت ہے کہ وہ لوگ اسلحہ اس غار تک لائے کیسے ہوں گے؟ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جیپ بھی یہاں تک پہنچ سکے۔ شارک بولا، ہم نے نشیب میں ایک گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وادی میں سڑک موجود ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ لوگ اس سڑک کے راستے پہاڑ کے دامن تک تو ٹرک لے کر آئے ہوں گے اور اس کے آگے پیٹیاں کندھوں پر لاد کر لائے ہوں گے۔ سمینہ بولی، اس میں انہیں بڑی محنت کرنی پڑی ہوگی۔
शारिक ने कहा, महनत के बगैर तो कोई काम नहीं होता। नौलखा बोला, कितना असलहा है? इसकी मालियत करोड़ों रुपए में होगी। मोहम्मद उमर ने उनकी बातों में मुदाखलत करते हुए कहा, अफगानिस्तान में खुराक से ज्यादा असलहा मौजूद है। कुछ असलहा अफगानों ने जंग के दौरान रूसी फौजियों से छीना था और बहुत सा असलहा रूसी फौजी वापस जाते हुए छोड़ गए थे। पूरे अफगानिस्तान में असलहे के अंबार लगे हुए हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि पहाड़ों में जा बजा इस तरह बहुत सा ऐसा गोला बारूद छुपा हुआ है जिसका अब कोई वारिस भी नहीं है। रूसियों का छोड़ा हुआ असलहा ही अब अफगान आपस की लड़ाई में इस्तेमाल कर रहे हैं। रूसी फौज को अफगानिस्तान से गए हुए अगरचे अरसा बीत चुका है, लेकिन उनके एजेंट अब भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। नौलखा बोला, मेरी समझ में एक बात नहीं आ सकी। रूसी तो उनके दुश्मन थे, वो वापस जा चुके हैं। उनके जाने के बाद ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मोहम्मद उमर ने कहा, इक्तदार बहुत बुरी चीज है शारिक भाई। रूसियों के जाने के बाद यहाँ कई पार्टियां मारज़े वजूद में आ गई हैं और हर पार्टी इक्तदार पर कब्जा करना चाहती है। नौलखा बोला, बड़े बेवकूफ लोग हैं ये। कुछ तबाही रूसी फौजियों ने फैलाई थी, रही सही कसर इन्होंने निकाल दी। हमने तो हर तरफ खंडर ही खंडर देखे हैं। सारी आबादी दूसरे मुल्कों में चली गई है। जो बचे कुचे रह गए हैं वो भी भूखे मर रहे हैं। इन लोगों को इतनी समझ नहीं आती कि सब कुछ खत्म हो गया तो इक्तदार का क्या करेंगे? क्या खंडरों और लाशों पर हुकूमत करेंगे? मोहम्मद उमर ने कहा, अगर ये बात इनकी समझ में आ जाती तो रूसियों को मुदाखलत का मौका ही न मिलता। अफगानिस्तान की तारीख देख लो, यहाँ शुरू से यही सब कुछ होता रहा है। हमेशा इन्होंने ही गैरों को हमले की दावत दी है। अफगानिस्तान हमेशा बैरूनी हमलावरों की आमाजगाह बना रहा है और आज भी सब कुछ हो रहा है। समीना ने मुदाखलत करते हुए कहा, इन्होंने खुद ही अपने मुल्क को जहन्नम बना रखा है, दूसरों को क्या इल्जाम दिया जाए? नौलखे ने कहा, और बदकिस्मती से हम भी इस जहन्नम में फंस गए हैं। निकलना चाहते हैं लेकिन रास्ता ही नहीं मिल रहा। मोहम्मद उमर ने कहा, 1-2 दिन में हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से निकल जाएंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सरहद यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर हमें रास्ता मालूम हो तो आज रात से पहले सरहद पार कर सकते हैं, लेकिन हमें रास्ता मालूम नहीं है। यह भी हो सकता है कि हम भटकते हुए दोबारा अंदरूनी इलाके की तरफ निकल जाएं। इसलिए हमें अब ज्यादा एहतियात से काम लेना होगा। बल्कि बेहतर यह है कि यहाँ से निकलने के बाद हम बस्ती में पहुंचने की कोशिश करें ताकि वहां से हमें सरहद पार करने का रास्ता मिल सके। नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओ भाई, रात को हम एक जहन्नम से निकले हैं, बस्ती की तलाश में किसी और जहन्नम में फंस गए तो जरूरी नहीं कि हर मर्तबा किस्मत हम पर मेहरबान हो। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मोहम्मद उमर ठीक कह रहा है नौलखे, हमें वाकई किसी बस्ती तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, वरना यही होगा कि हम सारी जिंदगी इन पहाड़ों में ही भटकते रहें। नौलखा गहरा सांस लेते हुए बोला, ठीक है भाई, तुम लोग जो कहते हो ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। रात भर के जागे हुए हैं, थके हुए हैं। मोहम्मद उमर ने कहा, हाँ, इस बात पर तो हम तुमसे मुत्तफिक हैं। ये जगह अगरचे महफूज है, लेकिन एक आदमी को जागना पड़ेगा। शारिक बोला, तुम लोग सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। तुम लोगों के जाग जाने के बाद मैं भी थोड़ा आराम कर लूंगा। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। शापरी चट्टान की दीवार के साथ आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। समीना भी अपनी जगह से उठकर उसके करीब जाकर लेट गई। मोहम्मद उमर और नौलखा भी दीवार से टेक लगाकर नीम दराज हो गए। शारिक ने राइफल कंधे पर लटका ली और उठकर टहलता हुआ सुरंग वाले रास्ते की तरफ आ गया। वो इधर उधर देखता हुआ सुरंग में दाखिल हो गया। 5-10 मिनट के बाद वो सुरंग के दहाने पर खड़ा इधर उधर देख रहा था। शारिक के ख्याल में यह महफूज तरीन जगह थी। असलहे वाले गार तक पहुंचने के लिए यही एक वाहिद रास्ता था। उस रास्ते पर खड़ा हुआ सिर्फ एक आदमी पूरी फौज को रोक सकता था। वो एक पत्थर पर बैठकर चारों तरफ देखता रहा। उसका जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। मोहम्मद उमर ने ठीक ही कहा था कि उन्हें किसी बस्ती तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उन्हें रास्ता न मिला तो वाकई इन पहाड़ों में भटकते रहेंगे और जरूरी नहीं कि किस्मत हर मर्तबा उनका साथ दे। वो तकरीबन 2 घंटे तक वहां बैठा रहा। उसकी आंखों में जलन हो रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि यहीं बैठे बैठे सो जाए। वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोले हुए था और फिर वहां से उठना ही चाहता था कि फजा में गड़गड़ की आवाज सुनकर चौंक गया। हवा के दोष पर आने वाली ये आवाज कभी तो बहुत करीब से आती हुई महसूस होती और कभी यूं लगता जैसे मीलों दूर से आ रही हो। शारिक को समझने में देर न लगी कि पहाड़ी के दूसरी तरफ नशेब में वादी की सड़क से कोई भारी गाड़ी गुजर रही थी। गालिबन कोई ट्रक होगा। शारिक वो आवाज सुनता रहा। अचानक ही उसके जहन में एक और ख्याल आया। अगर वो लोग वादी में उतरकर उस सड़क के साथ साथ सफर जारी रखें तो किसी न किसी बस्ती तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन फिर सर झटक कर इस ख्याल को जहन से निकाल दिया। कुछ पता नहीं था कि वो सड़क किस तरफ से आ रही थी और कहां जा रही थी। इसके अलावा ये अंदेशा भी था कि वो सड़क के साथ साथ सफर करते हुए किसी की नजरों में आ सकते थे। गुज़श्ता रात उन्होंने गुलबाज खान की लेबॉर्ट्री तबाह की थी। उससे पहले खान अब्दुल कुद्दूस की लेबॉर्ट्री तबाह कर चुके थे। गुलबाज खान के साथ एक तरह से उन्होंने धोखा किया था। उसने उन्हें पनाह दी थी। उन्हें खान अब्दुल कुद्दूस के हवाले कर देने से इनकार कर दिया था। उसकी दुश्मनी मोल ली थी और दोनों में जबरदस्त जंग हो गई थी।
गुलबाज खान ने शारिक और उसके साथियों पर एतमाद करते हुए उन्हें असलहा भी दिया और अपनी मदद की दरखास्त की थी, लेकिन उन्होंने गुलबाज की मदद करने की बजाय उसकी पीठ में छुरा घोंपा और उसकी लेबॉर्टरी तबाह करके वहां से भाग आए। शारिक को यकीन था कि अगर गुलबाज खान जिंदा बच गया तो वो खान अब्दुल कुद्दूस के साथ मिलकर उन्हें तलाश करेगा और उन पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारेगा। ऐसी सूरत में सड़क की तरफ रुख करना खतरे से खाली नहीं था। पहाड़ों में रहना ही उनके लिए सूदमंद था। किसी बस्ती तक जाना भी अगरचे उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन उनके लिए मजबूरी ये थी कि कोई बस्ती तलाश करना जरूरी था ताकि रास्ते के बारे में मालूम किया जा सके। शारिक आधा घंटा मजीद वहां बैठा रहा और फिर उठकर वापस आ गया। जब वो अपने ठिकाने पर पहुंचा तो शाहपरी जाग रही थी, जबकि उसके दूसरे साथी सो रहे थे। उसे देखकर शाहपरी मुस्कुरा दी, बोली तुम कहाँ चले गए थे? शारिक बैठते हुए बोला बस इधर उधर टहल रहा था, मेरी आंखों में बड़ी शदीद जलन हो रही है, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, तुम राइफल लेकर यहाँ पहरा देती रहो। शाहपरी ने जवाब दिया ठीक है तुम सो जाओ। ये कहकर उसने राइफल उठा ली। शारिक उस जगह लेट गया और कुछ ही देर के बाद वो नींद की आगोश में पहुंच चुका था। सूरज गुरूब होने से तकरीबन 1 घंटा पहले उसकी आंख खुल गई। उसके दूसरे साथी बेदार हो चुके थे। वो बोले क्या ख्याल है, आज की रात भी यहीं गुजारने का इरादा है? शारिक उठते हुए बोला हम लोग अभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं, रात को सफर करना हमारे लिए मुफीद होगा, कम से कम आज की रात। उसके 10 मिनट के बाद वो लोग घोड़ों पर सवार हो गए और सुरंग के रास्ते से होते हुए उस कुदरती पनाहगाह से बाहर आ गए। तकरीबन 200 गज का फासला तय करने के बाद वो रुक गए। यहाँ एक तंग सा रास्ता ढलान की तरफ चला गया था। शारिक ने ढलान वाले तंग से रास्ते की तरफ इशारा किया, बोला वादी की तरफ जाना मुनासिब नहीं होगा, मेरा ख्याल है इस रास्ते पर चला जाए। मोहम्मद उमर ने कोई जवाब देने की बजाय अपना घोड़ा उस रास्ते पर डाल दिया। दूसरे भी उसके पीछे ही थे। ढलान खत्म होते ही वो एक कुशादा जगह पर पहुंच गए। उस वक्त समीना का घोड़ा आगे निकल गया था। एक चट्टान के गिर्द घूमते ही उसने घोड़ा रोक लिया और चीख चीख कर अपने साथियों को पुकारने लगी। शारिक वगैरह ने वहां पहुंचने में देर न लगाई और फिर उन सब की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उस तरफ चट्टानों का एक साइबान सा बना हुआ था और उस साइबान के नीचे एक बड़ा फौजी ट्रक खड़ा था। ट्रक पर गर्द की तहें जमी हुई थी, लेकिन साफ पता चल रहा था कि वो रूसी फौजी ट्रक था। वो लोग कुछ देर तक देखते रहे, फिर आगे बढ़कर ट्रक के करीब आ गए। मोहम्मद उमर घोड़े से उतरकर पिछले हिस्से पर सवार हो गया, लेकिन ट्रक खाली था। शारिक भी घोड़े से उतर आया। उसने ट्रक का स्टीयरिंग साइड का दरवाजा खोल दिया और अंदर झांकने लगा। स्टीयरिंग और सीटों पर गर्द जमी हुई थी। पैसेंजर सीट पर एक भारी ओवरकोट पड़ा हुआ था। एक सब मशीन गन भी पड़ी हुई थी। शारिक पायदान पर चढ़कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाब न हो सका। उसने डैशबोर्ड पर लगे हुए डायल्स की गर्द साफ की और एक डायल पर नजर डालते ही वो समझ गया कि इंजन क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा था। फ्यूल बताने वाली सुई 0 पर थी। पैसेंजर सीट पर भारी ओवरकोट देखकर उसे ये समझने में भी देर न लगी कि ये ट्रक सर्दियों के मौसम में यहाँ लाया गया था। सर्दियां बीते हुए 6-7 महीने हो गए थे। हो सकता है ये ट्रक पिछली सर्दियों में यहाँ लाया गया हो। उसका पेट्रोल खुश्क हो चुका था। वो ट्रक से उतर आया। उसके साथी भी घोड़ों से उतरकर चारों तरफ से ट्रक को देख रहे थे। मोहम्मद उमर ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है ये वही ट्रक है जिस पर असलहा लाया गया होगा। गार में रखा हुआ असलहा ट्रक लोड के बराबर है और फिर अंदाजा है कि ये ट्रक किसी रूसी फौज नवाज का हिस्सा रहा होगा जो किसी तरह मुजाहिदीन या इस गिरोह के हाथ लग गया था। शारिक बोला, हाँ मेरा भी यही ख्याल है। इसका मतलब है कि वादी वाली सड़क से यहाँ तक कोई ऐसा रास्ता है जिससे ट्रक यहाँ तक लाया गया था। मोहम्मद उमर बोला, इसमें पेट्रोल होता तो ये हमारे काम आ सकता था। शारिक बोला, हाँ पता नहीं ये ट्रक कब से यहाँ खड़ा है, इसका पेट्रोल खुश्क हो चुका है। बहरहाल ये हमारे किसी काम का नहीं है, हम यहाँ खड़े वक्त क्यों जाया कर रहे हैं। नौलखा बोला, तो फिर चलो, मंजिल खोटी मत करो। वो एक बार फिर घोड़ों पर सवार हो गए और चट्टानों के ऊपर से घूमते हुए एक खुले रास्ते पर निकल आए। शाम हो चुकी थी और अंधेरा फैलने लगा था। वो कहीं रुके बगैर चलते रहे। शाहपरी पीछे थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो घोड़ा बढ़ाकर शारिक के करीब आ गई। बोली, हमने कल से कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख लग रही है। शारिक ने कहा, यहाँ कोई और चीज तो दस्तयाब नहीं है, फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। रात को तो जानवर भी कहीं दुब के सो रहे होंगे, शिकार भी नहीं हो सकता। शाहपरी खामोश रही। वो लोग पहाड़ों से निकलकर तंगसी वादी में एक दरिया के किनारे पर पहुंच गए। वो लोग फौरन ही घोड़ों से उतर गए और दरिया से पानी पीने के बाद इधर उधर बिखर कर बैठ गए। उन्हें वहां बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि आहट सुनकर चौंक गए। सब ने बैक वक्त घूमकर आवाज की तरफ देखा और फिर शारिक के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो कोई चौपाया था जो दरिया पर पानी पीने के लिए आया था। उस चौपाए को देखकर शारिक की आंखों में चमक सी उभर आई। उसने होंठों पर उंगली रखकर सबको खामोश रहने का इशारा किया और राइफल उठाकर निशाना बांधने लगा। चंद मिनट के बाद वो चौपाया पानी पीकर जैसे ही वहां से हटने लगा, शारिक ने राइफल का ट्रिगर दबा दिया। वीराना फायर की आवाज से गूंज उठा।
शारिक की गोली निशाने पर बैठी थी। वो चौपाया उछल कर गिरा और पत्थरों पर तड़पने लगा। मोहम्मद उमर जेब से चाकू निकाल कर तेजी से उस तरफ दौड़ा। नौलक्खे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शारिक बाबू, तुमने कोई भेड़िया तो नहीं मार दिया? शारिक बोला, अब चाहे भेड़िया हो या शेर, तुम लोगों को खाना ही पड़ेगा। शाहपरी को तो वैसे भी बहुत भूख लग रही है, वो तो शायद मुझे भी खा जाए। शाहपरी बोली, अगर किसी वक्त मेरी भूख बेकाबू हो गई तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगी। मोहम्मद उमर की आवाज सुनकर वो उस तरफ देखने लगे। वो नौलक्खे को बुला रहा था। नौलक्खा उठकर दौड़ता हुआ मोहम्मद उमर के पास पहुंच गया। वो पहाड़ी बकरा था जिसे मोहम्मद उमर ने ज़िबाह कर दिया था। बकरे को उठाकर वो लोग उसी जगह ले आए जहां शारिक वगैरह बैठे हुए थे। शारिक ने शाहपरी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें पेट भरना है तो उठकर लकड़ियां जमा करो, वरना कच्चा गोश्त खाना पड़ेगा। शाहपरी के साथ समीना भी उठ गई और शारिक भी। यहाँ झाड़ियों की बहुतात थी। उन झाड़ियों की लकड़ियां 2 फुट से ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन उनसे काम चल सकता था। वो झाड़ियां उखाड़ उखाड़ कर एक जगह पर जमा करने लगे। मोहम्मद उमर और नौलक्खे ने आधे घंटे में बकरे की खाल उतार ली। शारिक ने बड़े बड़े पत्थर रख कर चूल्हा सा बना लिया और आग जला दी। मोहम्मद उमर ने गोश्त के पारचे बनाकर आग पर रख दिए। तकरीबन 1 घंटे के बाद गोश्त इस काबिल हो सका था कि खाया जा सके। सबसे पहले शाहपरी ने एक टुकड़ा उठाया था और फिर दूसरे भी पीछे नहीं रहे। वो लोग 2 दिन के भूखे थे। कच्चा पक्का गोश्त नोच नोच कर खाने लगे। नौलक्खे ने शाहपरी से कहा, कैसा लग रहा है ये गोश्त शाहपरी? शाहपरी बोली, बहुत मजे का। नौलक्खे ने कहा, मैं लाहौर में तुम्हें लक्ष्मी चौक ले जाऊंगा। वहाँ 50 तरीकों से गोश्त तैयार किया जाता है। बाल्टी गोश्त, कढ़ाई गोश्त, पतीली गोश्त, टिक्का गोश्त। हर गोश्त का जायका मुख्तलिफ होता है, लेकिन ऐसा जायका तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। शाहपरी बोली, मैं लाहौर का गोश्त भी खाऊंगी। समीना ने कहा, हाँ, अगर जिंदा सलामत लाहौर पहुंच गए तो। शाहपरी ने उसे घूरा। बोली, क्या मतलब? समीना बोली, इन पहाड़ों से निकल सके तभी कहीं पहुंच सकेंगे ना। मुझे तो लगता है कि हम जिंदगी भर इन पहाड़ों में ही भटकते रहेंगे और इसी तरह पहाड़ी बकरों का गोश्त खाकर गुजारा करते रहेंगे। नौलक्खा बोला, मायूस क्यों हो समीना बीबी, निकल ही जाएंगे ना यहाँ से। जवाब में समीना खामोश रही और वो लोग खामोशी से गोश्त खाते रहे। तकरीबन 1 घंटे बाद उन्होंने बचा हुआ गोश्त समेटा और घोड़ों पर सवार होकर आगे रवाना हो गए। वो लोग रात भर चलते रहे। रात की तारीकी में घोड़े अपनी मर्जी से चल रहे थे। सुबह की रोशनी फैलने पर उन्होंने घोड़े रोक लिए। घोड़े पर बैठे बैठे इधर उधर देखते हुए शारिक चौंक गया। नशेब में तहद्दे निगाह सरसब्ज वादी फैली हुई थी। ऊंचे दरख्तों का एक जंगल था जो दूर तक फैला हुआ था। दाएं तरफ एक जगह 2-3 मकान नजर आ रहे थे। 2 घरों से धुआं उठता हुआ नजर आया। शारिक चारों तरफ देख रहा था। उन 2-3 मकानों के अलावा उन्हें दूर दूर तक कोई और मकान नजर नहीं आया। मोहम्मद उमर और समीना वगैरह ने भी वो मकान देख लिया। समीना ने कहा, क्या ख्याल है, वहां तक चला जाए? शारिक ने कहा, हो सकता है वहां कुछ और मकान हो जो दरख्तों की वजह से हमें नजर ना आ रहे हों। इस तरह वहां चले जाना हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। समीना ने सवालिया निगाहों से देखा। बोली, तो फिर? शारिक बोला, तुम लोग यहीं रुको, मैं और मोहम्मद उमर जाकर सूरत हाल का जायजा लेते हैं। अगर सूरत हाल हमारे हक में हुई तो हम सफेद कपड़े लहरा देंगे, तुम लोग भी चले आना। और अगर हमारी तरफ से कोई सिग्नल न मिला तो तुम लोग यहीं रुक कर हमारा इंतजार करना, हम कोई और रास्ता सोचेंगे। समीना वगैरह घोड़ों से उतरकर एक तरफ बैठ गए। शारिक और मोहम्मद उमर ने अपने घोड़े ढलान पर मोड़ दिए। वो मकान से ज्यादा दूर नहीं थे। घोड़े पत्थरों के गिर्द बल खाते हुए रास्ते पर चल रहे थे। उन मकानों से तकरीबन 100 गज के फासले पर 20-25 भेड़ें चरती हुई नजर आईं। उन्हें गालिबन सुबह सवेरे ही उनके बाड़े से निकाल दिया गया था। मोहम्मद उमर ने कहा, तुम यहीं रुक जाओ, मैं आगे जाकर देखता हूँ। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम यहाँ रहकर मेरी मदद कर सकोगे। शारिक ने अपना घोड़ा एक बहुत बड़े पत्थर की आड़ में रोक लिया और मोहम्मद उमर को देखने लगा, जिसका घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उन मकानों की तरफ जा रहा था और बिलाखिर एक मकान के सामने पहुंचकर घोड़ा रुक गया। शारिक पत्थर की आड़ में घोड़े पर बैठा उस तरफ देख रहा था। उसने घोड़े की लगाम छोड़ दी थी और राइफल को दोनों हाथों में थाम लिया था। मोहम्मद उमर ने मकान से कुछ दूर घोड़ा रोक लिया और पश्तो में कदरे ऊंची आवाज में पुकारने लगा। तकरीबन 2 मिनट के बाद एक आदमी मकान से बाहर निकला। उसकी उम्र 60 साल के लगभग रही होगी। सफेद दाढ़ी उसके सेहतमंद चेहरे पर भली लग रही थी। बोला, क्या बात है, कौन हो तुम? मोहम्मद उमर ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। वो कुछ देर तक उस बूढ़े से बातें करता रहा। फिर उसने शारिक को भी बुला लिया और उसके थोड़ी ही देर के बाद शारिक ने अपनी कमीज उतार कर समीना वगैरह को सिग्नल दे दिया। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो लोग भी वहां पहुंच गए थे। वहां 3 मकान थे। तीनों घरों से मर्द और बच्चे बाहर आ गए। औरतें भी दरवाजे में खड़ी झांक रही थी। मर्दों में तो एक वही बूढ़ा था और 3 जवान आदमी थे। बूढ़े ने समीना और शाहपरी को एक मकान में भेज दिया और शारिक वगैरह को लेकर दूसरे मकान में आ गया। उन लोगों से गुफ्तगू का चार्ज मोहम्मद उमर ने संभाल लिया। वो उन्हें बता रहा था कि वो लोग अरगवान से सरोबी की तरफ जा रहे थे, मगर रास्ता भटक गए। बूढ़े ने उसे बताया कि वो असल रास्ते से बहुत दूर निकल आए हैं। सरोबी वहां से कम 6 घंटे की मुसाफत पर है। बूढ़े ने अपने बारे में बताया
कि ये 3 घर उसके खानदान पर मुश्तमिल हैं। उसके एक दूर के रिश्तेदार ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है और वो लोग यहाँ दरख्त काटते रहते हैं। महीने में 1 आध मरतबा ट्रक आता है और कटी हुई लकड़ियां ले जाता है। कटाई का असल काम जंगल के दूसरी तरफ हो रहा है, जहाँ 20-22 आदमी काम पर लगे रहते हैं। ये बूढ़ा दरअसल यहाँ चौकीदार था। दरख्त काटना उसकी इजाफी आमदनी में शामिल था। मोहम्मद उमर ने पूछा, हमसे पहले यहाँ कोई और अजनबी भी आया था? बूढ़े ने कहा, नहीं, यहाँ कई रोज से कोई अजनबी नहीं आया। मोहम्मद उमर ने पूछा, यहाँ से सरूबी के अलावा किसी और तरफ जाने का रास्ता भी है? बूढ़े ने कहा, हाँ, सामने वाले पहाड़ के दूसरी तरफ पाकिस्तान का इलाका साउथ वजीरिस्तान है। मंगरूताई भी यहाँ से चंद घंटे की मुसाफत पर है। सरहद ज्यादा करीब है। खारदार सरहद के दूसरी तरफ पहला कस्बा है। मोहम्मद उमर ने एक और सवाल किया, बोला, कभी वहां गए हो? बूढ़े ने कहा, अक्सर जाते रहते हैं। खारदार में मेरा मामूजाद भाई और कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं। कभी वो लोग भी इस तरफ आ जाते हैं। मोहम्मद उमर कुछ और पूछना चाहता था कि एक बच्चे ने आकर बताया कि खाना तैयार हो चुका है। बूढ़े ने एक नौजवान को इशारा किया। वो उठकर बाहर चला गया। कुछ देर के बाद उस नौजवान ने दरी पर दस्तरखान बिछा दिया और दूसरे नौजवान ने खाना लगा दिया। खाने के दौरान भी बातें होती रहीं। मोहम्मद उमर बूढ़े से कुरेद कुरेद कर पूछ रहा था। वो ये तसल्ली कर लेना चाहता था कि यहाँ उनके लिए कोई खतरा तो नहीं है। बूढ़े की बातों से वो मुतमईन था कि यहाँ वो महफूज हैं। कई रोज बाद उन्हें ढंग का खाना मिला था। उन्होंने खूब पेट भर कर खाना खाया। उसके बाद वो देर तक बातें करते रहे। नौलखा एक तरफ बैठा ऊँघ रहा था और फिर वहीं लेट गया। चंद सेकंड के बाद उसके खराटों की आवाज सुनाई देने लगी। बूढ़े ने उठते हुए कहा, तुम लोग थके हुए हो, आराम करो। दोपहर के खाने पर मैं तुम लोगों को जगा दूंगा। मोहम्मद उमर ने कहा, अगर कोई अजनबी इस तरफ आ जाए तब भी हमें जगा देना। बूढ़े ने कहा, फिक्र मत करो, यहाँ तुम लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। शारिक और मोहम्मद उमर कुछ देर बातें करते रहे, फिर वो भी दरी पर लेट कर सो गए।